Hey guys, welcome to the class, and this is me Ankita. So in last lectures we have discussed about the biomolecules, carbohydrate. We ended up with amino acids, right, which is a building block for proteins. So we have studied there are different types of amino acid, essential amino acid, non-essential amino acid, acidic amino acid, basic, neutral amino acid, right? So I hope the amino acids which has different side chains, everything is clear to you. Okay, so that is very important guys. Zwitter iron हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन के बारे में, राइट? हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो एसिड से बनता है, राइट? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. तो अभी हमें ये पढ़ना है कि ये पॉलीमर बनता कैसे है, अल्फा अमीनो एसिड कैसे ज्वाइन होते हैं, दैट वी हैव टू सी. ओके, so let's start with the today's class. Now the proteins are the polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond or which is also called as peptide linkage. ठीक है, अभी जब दो अमीनो एसिड या दो से ज्यादा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तभी वो पॉलीमर बनेगा. तो वो ज्वाइनिंग जो होती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड linkage. Okay, now peptide linkage is nothing but it is a amide linkage, ठीक है, which is formed between COOH group which is present in amino acid, right, and NH2 group. हमने देखा है amino acid का structure is something like this, right? NH2, उसके बाद क्या होता है CHR, right? CHR is your side chain जो हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होगी, राइट? और उसके बाद COOH. So the reaction between COOH, carboxylic group of one amino acid, and NH2 group of another amino acid, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी और उसके बाद जो आपका ये बनेगा प्रोडक्ट, दैट इज peptide, that contain peptide bond. Okay, we will see that with the example. Okay, now ये देखिए, ये एक amino acid है, this is one amino acid and this is another amino acid. Now this may be, now the reaction which has happened between two amino acid वो same भी हो सकते हैं और वो different भी हो सकते हैं, ठीक है? तो here we will take R1 and here we will take R2. मतलब ये दोनों अमीनो एसिड कैसे है, डिफरेंट है. R1 भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन जो है वो दो सेम अमीनो एसिड के बीच में भी हो सकती है. ओके, बस सिर्फ इतना याद रखिए, रिएक्शन विच इज हैपनिंग is in between carboxylic group COOH group of one molecule of amino acid and NH2 group of another amino acid. ठीक है, this is number one amino acid, this is number two. Okay, तो COOH group of first amino acid and NH2 group ये वाला of another amino acid, they will react, they undergo condensation reaction. Okay, अभी जब ये condensation में जाएंगे तो क्या होगा, OH group from carboxylic group, okay, and hydrogen from amino group, they remove as H2O. ठीक है, ये H2O की तरह रिमूव हो गया, तो ये कार्बन जो है ये अब किससे बॉन्ड हो जाएगा, दिस विल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन. तो ये देखिए CONH, right, in this way. So this is nothing but peptide linkage, this is peptide bond which is in between carboxylic group and NH2 group. Okay, so here it is given the reaction between two molecules of similar and different amino acid through the combination of amino group of one molecule with the carboxylic group of other. This result in elimination of water and formation of peptide bond CONH. Okay, peptide bond को amide linkage भी बोलते हैं because this is nothing but amide linkage. ठीक है,
तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड लिंकेज. फाइन. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के नाम से ही क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है. नाउ वेयर NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट. अभी देखिए यहाँ पे आगे कोई अमीनो एसिड ने रिएक्ट नहीं किया. दिस इज द रिएक्शन विच इज हैपन बिटवीन टू अमीनो एसिड. ठीक है. तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा है? NH2 ग्रुप. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अमीनो टर्मिनस. क्या बोलते हैं इसको? अमीनो एंड या फिर अमीनो टर्मिनस. ओके. अभी इस साइड जो है, इस साइड आपका कौन सा ग्रुप है? COOH ग्रुप. राइट. तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी टर्मिनस. टर्मिनल. टर्मिनल एंड. ओके. कार्बोक्सिल टर्मिनल या कार्बोक्सिल एंड या फिर C टर्मिनल, इसको बोलते हैं एंड टर्मिनल. ओके. बिकॉज दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो है वो NH2 ग्रुप है और C टर्मिनस मतलब या सी टर्मिनल मतलब वहां पे एंडिंग किससे हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एंड हुआ है. आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके. रिएक्शन समझ में आ चुकी है सबको? डिहाइड्रेशन रिएक्शन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके. नाउ द प्रोडक्ट व्हिच इज हैपन बिटवीन टू अमीनो एसिड, मतलब जब दो अमीनो एसिड will undergo condensation reaction, the product form is known as dipeptide. ठीक है. प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? डाइपेप्टाइड. इन जनरल जो अमीनो एसिड हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग नाम होगा, बट जब दो अमीनो एसिड हम लेते हैं तो उसे हम जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं कि डाइपेप्टाइड बना है. ठीक है. जब जब when we will take 3 amino acid, at that time the product is tripeptide. So basically you have to add the prefix before the word पेप्टाइड. राइट. 3 अमीनो एसिड, नाम क्या हो गया? ट्राइपेप्टाइड. इफ it will take 4 अमीनो एसिड, नेम विल बी टेट्रापेप्टाइड. 5 के लिए पेंटापेप्टाइड. 6 अमीनो एसिड अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हेक्सापेप्टाइड. रिएक्शन सेम होगी. COOH ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, NH2 ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड. उसके बाद फिर से NH2 ग्रुप ऑफ दैट अमीनो एसिड एंड COOH ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड. इसी तरीके से रिएक्शन होगी. वी विल सी इट विद द एग्जांपल. अभी कंसीडर कीजिए हमने यहाँ पे ग्लाइसिन और एनिलीन लिया है. ठीक है. ग्लाइसिन में R ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. राइट. और एनिलीन में R ग्रुप कौन सा होता है? मिथिल ग्रुप होता है. तो ये देखो, ये हमारा ग्लाइसिन है और ये हमारा एनिलीन है. 2 अमीनो एसिड. ठीक है. तो ये क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड बनाएगा. फाइन. तो अभी देखो क्या हुआ है. COOH ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन एंड NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन, ये रिएक्ट हुए. क्या हुआ? दे विल अंडरगो कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. CONH के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया. राइट. ये वाला टर्मिनल कौन सा है? दिस वन इज N टर्मिनल, दिस वन इज C टर्मिनल. राइट. एंड नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड. डाइपेप्टाइड. ठीक है. डाइपेप्टाइड बना है जिसका नाम है ग्लाइसिल एनालिन. ग्लाइसिल एनालिन बिकॉज 2 अमीनो एसिड जो हमने लिए हैं वो है ग्लाइसिन एंड एनालिन. जो पहला अमीनो एसिड होता है जिससे COOH ग्रुप रिएक्ट होता है, दैट एंड विथ वायल. ओके. उसका नाम हम वायल से एंड करते हैं. और जो आगे के अमीनो एसिड है दैट इज एनालिन. ठीक है. तो don't focus that much on naming system, just remember dipeptide, tripeptide, tetrapeptide क्या होता है. ठीक है. कितने अमीनो एसिड लोगे तो डाई ट्राई बनेगा. ओके. आई होप दिस मच इज क्लियर. अभी मुझे एक बात बताओ, व्हाट हाउ विल यू प्रिपेयर ट्राइपेप्टाइड कैसे बनेगा? ठीक है. सो विल सी दैट कि ट्राइपेप्टाइड कैसे बनता है. तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था. चलो वी विल टेक द सेम एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिन, एनालिन और एक और अमीनो एसिड ले लेते हैं, दैट इज वैलिन. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है. COOH. ओके. दिस रिएक्ट्स विथ ये हमारा क्या था? H था ना. वेट अ सेकेंड. ना यहाँ पे ग्लाइसिन लेना है हमको तो R विल बी H. सिर्फ
कुछ नहीं करना है आपको, NH2 के साथ COOH ग्रुप रिएक्ट करना है और रिएक्शन वैसे ही आगे चलती जाएगी. यहाँ पे प्लस नहीं है, दैट इज बॉन्ड. ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका H एंड हियर इट इज COOH. ओके, प्लस NH2. मोस्ट ऑफ द टाइम जो NH2 ग्रुप होता है वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो आपका COOH ग्रुप होता है, मतलब जो C टर्मिनल होगा, दैट इज ऑन राइट हैंड साइड. ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा. C टर्मिनल जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, और जो एंड टर्मिनस होता है, एंड होता है, अमीनो एंड होता है, वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है. ठीक है, तो इसीलिए जब मैं लिख रही हूँ तो NH2 ग्रुप आई एम राइटिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट इज ग्लाइसिन, सेकेंड इज योर एनिलीन, एंड थर्ड इज योर वैलीन. वैलीन का R ग्रुप कौन सा होता है? इट्स CH3/2. ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका COOH. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से OH गया विथ वन ऑफ द हाइड्रोजन. ओके, यहाँ से OH गया विथ वन ऑफ द हाइड्रोजन. सो इस तरीके से आपके 3 अमीनो एसिड रिएक्ट होंगे बाय रिमूवल ऑफ 2H2O मॉलिक्यूल. ठीक है, तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? बॉन्ड इज बिटवीन, यहाँ पे तो NH2 है, अगर यहाँ से आगे कोई अमीनो एसिड आप रिएक्ट करते हो तो ये वाला H भी चला जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, राइट. तो बट यहाँ पे एंड हो रहा है, हमने 3 ही अमीनो एसिड लिए तो हम कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा? CO बॉन्ड NH, राइट, एंड दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, पेप्टाइड लिंकेज. आगे क्या होगा? CH CH3, बाकी तो वैसा ही रहेगा, CH CH3, और आगे क्या आएगा? फिर से CO NH, CO NH आ जाएगा. राइट, ये हो गया आपका दूसरा पेप्टाइड लिंकेज. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH, यहाँ पे आ जाएगा CH CH/3, CH3/2, सॉरी 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका COOH. अगर यहाँ से कोई आगे अमीनो एसिड आपको टेट्रापेप्टाइड करना है तो आप फिर से अमीनो एसिड आगे ले सकते हो, और यहाँ पे भी फिर बॉन्ड बन सकता है CO बॉन्ड NH, राइट, इस तरीके से. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. इस ये कौन सा है? ये है आपका ट्राइपेप्टाइड, बिकॉज 3 अमीनो एसिड्स आर टेकन. ओके, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ट्राई टेट्रा पेंटा, so on. Okay, तो I hope peptide bond is clear, peptide linkage is clear. CONH linkage जो है that is peptide linkage. Now it is similar, the structure is similar to secondary amine. ये जो है ना NH bivalent, ये secondary amine का structure है, right? So this is quite similar to the secondary amine. जब हम amine पढ़ेंगे that time it will be more clear. Okay, so now the product of the, ये तो हमने पढ़ ही लिया है. When the number of such amino acid is more than 10, जब 10 से ज्यादा अमीनो एसिड आप लेते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड. ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर 10 से ज्यादा है तो इट इज पॉलीपेप्टाइड. नाउ a polypeptide with more than 100 amino acid residue, मतलब ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज हायर देन 10,000 यूनिट, राइट, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन. पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के यूनिट्स मिलके देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बट ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, बहुत छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, लाइक इंसुलिन.
Insulin is the protein, okay, which contains only 51 amino acids. ये चीज याद रखना, इंसुलिन में सिर्फ 51 अमीनो एसिड होते हैं. तो पॉलीपेप्टाइड विद फीवर अमीनो एसिड आर लाइकली टू कॉल्ड प्रोटीन्स. ठीक है, दे आर लाइकली टू कॉल्ड प्रोटीन्स इफ दे आर ऑर्डिनली हैव अ वेल डिफाइंड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन. मतलब अगर वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, उनका कंफर्मेशन एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू द प्रोटीन कंफर्मेशन, दैट टाइम दैट पॉलीपेप्टाइड इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन. तो ये जो हमने ऊपर लिखा है, द पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिडिव having molecular weight more than 10,000 unit is called as protein. This is true, but in some cases this is also true. Smaller polypeptide chain is also called as protein. ठीक है, insulin is the best example for it. Fine. अभी इंसुलिन का यूज होता है, इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है बॉडी में हमारे, राइट? ये चीज आपको पता होनी चाहिए. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम्स कि आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो फैक्चुअल पार्ट है कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, आप लर्न कर लोगे. बट इंसुलिन होता क्या है, कहाँ काम आता है? यस, इट इज यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, राइट? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ब्लड शुगर. ओके, कौन सिक्रीट करता है, कौन सी ग्लैंड इन्वॉल्व है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट नाउ. ओके, now proteins are classified into two types on the basis of molecular shape. On the basis of their shape कैसा है, they are classified into two types. First one is fibrous protein and second one is globular protein. अभी fibrous है मतलब the protein का जो shape है, it is somewhat like fiber. ठीक है, straight होगा, thread like structure होगा उसका, right? So when a polypeptide chain run parallel, right, when a polypeptide chain run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond, किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से. then the fiber like structure is formed and that is known as fibrous protein. ठीक है, एक स्ट्रेट चेन होती है जिसमें कौन से बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से जो टुगेदर मतलब अटैच्ड होंगी. ओके, so ऐसे जो प्रोटीन होते हैं, they are fiber like, straight, thread like. such proteins are insoluble in water. और ऐसे एग्जाम्पल्स कौन से, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछते हैं. some common examples are keratin, जो कहाँ होता है, हेयर में होता है, wool, silk. okay, myosin present in muscles. these are the examples of fibrous protein. अभी ग्लोबुलर क्या है, अभी नाम से ही पता चल रहा है, it is somewhat spherical, right? तो structure result when the chain of polypeptide coil around to give a spherical shape. मतलब ये जो thread like था ना structure, ये अभी coiled हो जाएगा. ठीक है, ये अभी coiled हो जाएगा and it will give you a globular shape, spherical shape. ठीक है, so इसीलिए हम इसे बोलते हैं globular protein and they are usually soluble in water. Example, insulin and albumins, they are globular proteins. Okay, I hope this much is clear. Protein एक और होता है, that is known as conjugated protein. On the not on the basis of shape, that is on the basis of components, कि उसमें components कौन से present है. एक होता है simple protein, एक होता है conjugated protein, एक होता है derived protein. ठीक है, now simple protein is nothing but albumin, जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बना है. ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है ना, उसमें अमीनो एसिड तो होते ही है, बट उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है. अमीनो एसिड के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जिसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट. मतलब वो अमीनो एसिड से नहीं बना है, उसमें प्रोटीन की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है. जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसके एग्जांपल्स यू कैन सी, तो इट इज ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, अभी ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर होते हैं. ग्लाइको मतलब शुगर, राइट? तो अमीनो एसिड प्लस शुगर अगर है तो इट इज ग्लाइकोप्रोटीन. नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी, देन इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है और उसके साथ होता है न्यूक्लिक एसिड.
इसलिए उसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये जो है ना शुगर, न्यूक्लिक एसिड, ये जो है दिस इज नॉन प्रोटीन पार्ट एंड दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एक और होता है लिपोप्रोटीन, आपने सुना होगा राइट। तो उसमें होता है अमीनो एसिड एंड लिपिड्स। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के साथ एक और नॉन प्रोटीन पार्ट इन्वॉल्व हो, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप इन्वॉल्व है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, derived protein is nothing but it is derived from simple protein and conjugated protein. Okay, chalo, this much is clear to everyone. So moving further, now we will see structure of proteins. Now structure and shape of proteins can be studied at 4 different level, that is primary level, secondary structure of protein, tertiary structure of protein and quaternary structure of protein. नाउ जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी, तो आप देखोगे हर एक लेवल कॉम्प्लेक्स होते जाती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। हाउ, मतलब प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो, ऐसा क्या अलग अलग है, राइट। नाउ अभी हमने बोला कि प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, राइट। नाउ अभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो किससे बनी है? It is made up of number of amino acid, right? ये amino acid एक दूसरे से join हुए, right? And there is a formation of polypeptide chain. But ये जो amino acid एक दूसरे से join हुए हैं, इनका कोई specific sequence तो होगा ना, right? Amino acid link with each other in specific sequence. This is important. In each polypeptide of the in a protein, मतलब जो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी अमीनो एसिड की। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ग्लाइसिन के जगह हमने वैलिन डाल दिया या फिर आर्जिनिन के जगह हमने ल्यूसिन डाल दिया तो प्रोटीन बन जाएगा। जी नहीं, अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 4, अगर ऐसी सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस ऐसी ही रहेगी प्रोटीन में। आप अमीनो एसिड 2 की जगह अमीनो एसिड 3 नहीं ले सकते, राइट। मतलब दूसरा अमीनो एसिड नहीं ले सकते, दैट वोंट रिजल्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन जो आपको चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर defines about the specific sequence of amino acid present in the polypeptide chain or present in the protein. प्राइमरी स्ट्रक्चर का काम क्या है? अमीनो एसिड का एग्जैक्ट और स्पेसिफिक सीक्वेंस बताना कि वो किस तरीके से अरेंज्ड है। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आता है अमीनो एसिड का, तो दैट विल क्रिएट एंटायरली अ डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, वो पूरा की पूरा एक नया प्रोटीन बन जाएगा और वो प्रोटीन बायोलॉजिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, कंसिडर हमें बनाना था इंसुलिन, बस एक अमीनो एसिड दूसरा आ गया विच इज 51 अमीनो एसिड से जो बनता है, तो एक अमीनो एसिड दूसरा आ गया तो वहां पे कोई नया ही प्रोटीन बन जाएगा। हो सकता है वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल ना हो, राइट, वो बायोलॉजिकली एक्टिव ना हो। सो दैट्स व्हाई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, लुक दिस इज अमीनो एसिड 1, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर R1 है, राइट। दिस इज अमीनो एसिड 2, यहाँ पे एक पर्टिकुलर R2 है। देखो ये बॉन्ड हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना, पेप्टाइड लिंकेज है यहाँ पे। नाउ ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज है, दिस इज अमीनो एसिड 3, दिस इज R3, दिस इज R4, ये एक पेप्टाइड लिंकेज है। ऐसे नंबर ऑफ अमीनो एसिड आते जाएंगे, दे यूज टू बॉन्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज, राइट, दे यूज टू हेल्ड टुगेदर बाय दैट बॉन्ड, और ये है आपका अमीनो एसिड 50, R50। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको कौन देगा? दिस इज गिवन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड लगाना है, राइट। सो दैट्स व्हाई प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। अभी क्या होता है अगर अमीनो एसिड गलत लग गया तो, राइट, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। वी आर कंटिन्यूअसली सेइंग कि स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए, एक करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ही रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, राइट, वी विल सी इट। आपने सिकल सेल एनीमिया सुना है?
आई होप सुना ही होगा, राइट? ब्लड डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, राइट, एसोसिएटेड विद आरबीसीज। तो देखिए हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, अगेन व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट इज प्रोटीन, राइट? इट इज प्रोटीन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ओके? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ठीक है? तो अभी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेन का सीक्वेंस ये है, वैलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, ओके? मतलब आगे कंटिन्यू और, ओके? अभी हमने इसमें से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग गया थ्रू म्यूटेशन, ठीक है? जीन में एक जीन जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक टर्म आती है म्यूटेशन, तो दैट इज नथिंग बट चेंज, ओके? तो ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन लग गया, तो अभी सीक्वेंस क्या हो गया, वैलिन, हिस्टाडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक ही तो अमीनो एसिड चेंज हुआ है, इससे कौन सा फर्क पड़ गया? इससे ये फर्क पड़ गया कि आपको सिकल सेल एनीमिया हो गया, ओके? सो इससे आप समझ सकते हो कि सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड के चेंज से क्या हो गया। आरबीसी जो होते हैं, जो राउंड होते हैं जनरली हमारे ब्लड में, दे फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, वो क्या हो गए, वो श्रिंक हो गए, राइट? आई होप सिकल सेल एनीमिया सबको पता है, कुछ ऐसे आरबीसीज होते हैं हमारे, और सिकल सेल एनीमिया के वजह से उनका शेप ऐसा हो जाता है, right? So this is blood disorder which has happened because of this amino acid mutation in your hemoglobin beta chain, right? तो I hope primary structure is clear to everyone. यही लिखना होता है आपको primary structure में. You can draw this structure like आप amino acid का chain बता सकते हो, R1, R2, R3, R4. Not entirely in this way में आप normal chain भी निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे हमने ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बनाए थे उसी तरीके से आप बना भी सकते हो, okay? So I hope this much is clear. Now primary structure से second level is secondary structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है? बीटा प्लीटेड शीट्स। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये जो रिंग होती है, ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो एसिड अटैच्ड है, राइट? ये एक दूसरे, ये कॉइल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे ये अमीनो एसिड है, ये जो बॉल्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज अमीनो एसिड। कंसिडर कीजिए यहाँ पे COO ग्रुप प्रेजेंट है, ओके? OH ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे NH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये वाला CO, ओके? आई विल ड्रॉ इट इन, ये वाला कैंसिल कर दीजिए, नीचे देखिए ये एक अमीनो एसिड का NH है और ये दूसरे अमीनो एसिड का CO ग्रुप है। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, राइट? और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है तो क्या हो जाएगा, तो वो कॉइल हो जाएगा, राइट? अभी ये देखिए यहाँ पे NH है, ओके? यहाँ पे CO है। अगर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, या फिर ये एक अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, ओके? इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये क्या कर देगा, ये कॉइल कर देगा ना स्ट्रक्चर को। जो पहले स्ट्रेट चेन थी अभी वो आपको कॉइल दिखेगी क्योंकि बीच में बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं, ओके? सो दैट इज द थिंग, वो चीज आपको याद रखनी है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो कॉइल्ड हो गया है अल्फा हेलिक्स की तरह, ठीक है? टर्शरी स्ट्रक्चर फिर से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है इसका फर्दर कॉइलिंग होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, राइट? टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब इट इज द 3D स्ट्रक्चर, 3D कंफर्मेशन होता है आपके चेन का, अमीनो एसिड चेन का, ओके? एंड दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर कॉइलिंग हो जाती है, एंड दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। जब ऐसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाती है तो there is a formation of quaternary structure,
असेंबल सब यूनिट्स। मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको हमने बोला सब यूनिट। ऐसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे मिल जाएगी एंड दे विल फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये एक दूसरी चेन है जो आपको रेड कलर में दिख रही है और ये एक दूसरी चेन है जो आपको येलो कलर में दिख रही है, राइट? तो ऐसी नंबर ऑफ चेन्स जब मिलती है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अभी डीनेचुरेशन क्या होता है, राइट? जो बॉडी में हमारे प्रोटीन मिलता है ऑब्वियसली दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन, उसका एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन है, 3D शेप है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन। वो क्या हो गया? नेटिव प्रोटीन हो गया। लेकिन जब ये नेटिव प्रोटीन एक फिजिकल चेंज को सब्जेक्ट करते हैं हम लोग, दैट इज अगर टेम्परेचर चेंज होता है, अगर पीएच चेंज होता है, या फिर उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं वो अगर डिस्टर्ब हो गए, तो प्रोटीन जो है ना वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। मतलब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, जो उसका काम है वो नहीं करेगा, राइट? और इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, सो इसमें क्या होता है, जब डीनेचुरेशन होता है ना तो सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जिस जिस तरीके से अमीनो एसिड एक दूसरे को लिंक्ड रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो उनका फर्दर कॉइलिंग है, फर्दर फोल्डिंग है इन टर्शरी, इन क्वाटरनरी, वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, राइट? जिसके वजह से प्रोटीन की पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आई थी, राइट? यहाँ पे देख सकते हो, लुक दिस इज नेटिव प्रोटीन। नाउ ये जो प्रोटीन है ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है हमारे बॉडी में, ओके? इसको थोड़ी सी हीट ज्यादा हो गई, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ओके? तो ये क्या हो गया? पार्शियली डीनेचुरड हो गया। ये देखिए, ये वाला जो यहाँ पे कॉइल था ये खुल गया है ना यहाँ पे, राइट? तो ये पार्शियली डीनेचुर हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी इसमें है। इसको और हीट मिली, मतलब और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो अभी क्या हो गया? ये पूरा की पूरा डीनेचुरड हो गया। मतलब जो हमने देखा था कॉइलिंग हो रखी थी, वो कॉइलिंग पूरी की पूरी ओपन अप हो गई। एंड दिस इज नाउ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें क्या है? सिर्फ अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक है इन प्रॉपर सीक्वेंस, ओके? सो ये जो डीनेचुरड प्रोटीन है ये इनएक्टिव है, इसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, ओके? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीनेचुरड प्रोटीन। एंड इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट। कौन से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुए हैं? सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, क्योंकि उसमें फोल्डिंग थी और फोल्डिंग ओपन अप होती गई, ठीक है? नाउ इन सम ऑफ द केसेस denatured protein can undergo renaturation if provided with proper condition। मतलब ये हीट के वजह से डीनेचुरड हुआ, अभी ये प्रोटीन अगर हम इसको प्रॉपर कूलिंग कंडीशंस देंगे, कंट्रोल कंडीशंस देंगे, तो ये रीनेचुरेशन कर देगा, मतलब फिर से आपका नेटिव प्रोटीन बना देगा। कन्वर्जन ऑफ डीनेचुरड प्रोटीन बैक टू नेटिव प्रोटीन, मतलब विच पजेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो आई होप आपको रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन डिफरेंस समझ में आ गया। डीनेचुरेशन मतलब अनफोल्ड होना, इनएक्टिव हो जाना। रीनेचुरेशन मतलब एक्टिव हो जाना, ठीक है? विच पजेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये हर प्रोटीन में नहीं होता, ये कुछ कुछ प्रोटीन में हो जाता है। डीनेचुरड प्रोटीन फिर से प्रॉपर कंडीशन मिल जाए तो वो नेटिव प्रोटीन बन जाता है। लेकिन एक बार डीनेचुरड हो गया एंड इफ कांट अंडरगो रीनेचुरेशन, वो फिर से डीनेचुरड नहीं होता है, देन इट इज ऑफ नो यूज। उसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में फिर, ओके? उसको डिकम्पोज करना ही पड़ता है बॉडी को, बिकॉज इट इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ठीक है? वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा। तो इसके कौन से एग्जाम्पल होंगे? सो द कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, जब हम उसको बॉईल करते हैं तो उसका जो प्रोटीन होता है दैट गेट्स कोएगुलेट, ओके? सो वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, राइट? दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। अनदर एग्जांपल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क से कर्ड बनता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, राइट? सो अगेन दैट इज डीनेचुरेशन। मिल्क में प्रोटीन होता है ना? ऑफ कोर्स होता है, राइट? तो अगेन दैट इज डीनेचुरेशन। तो आई होप आपको एग्जांपल्स क्लियर है डीनेचुरेशन के। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन पे कभी कभार नोट पूछी जा सकती है, तो यू मस्ट रिमेम्बर व्हाट इज डीनेचुरेशन, कब होता है, कौन सी कंडीशंस पे होगा,
right? So that is change in temperature, change in pH, chemical change और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब अगर हो जाते हैं तो डीनेचुरेशन होने के चांसेस है. नेटिव प्रोटीन किसे बोलते हैं, डीनेचुरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, दिस इज अ फंडामेंटल नॉलेज विच यू पोसेस. ठीक है, मतलब ये आपको आना ही चाहिए. बाकी की तो हायर लेवल की चीज है, उसमें से थोड़ी बहुत छूट भी गई तो इट्स ओके, बट जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो आपको आने चाहिए. ठीक है, तो आई होप पेप्टाइड बॉन्ड इज क्लियर, पेप्टाइड लिंकेज इज क्लियर, पेप्टाइड बॉन्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओके, वो आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. See you in next class with enzymes, okay? And the last biomolecules which we will study is nucleic acid. So we will study that in next class. Till then, keep learning, keep practicing. So see you all. Take care. Bye.